भाभी स्क्रीन शेयर नहीं हुआ ना? हाँ जी भाभी, कर रही हूँ स्क्रीन शेयर। एक मिनट का छोटा सा ब्रेक लेंगे। आपको बस प्रोग्रेस करते रहना है। आई गिव यू अ चैलेंज कि क्या आप दो सेट्स कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वार्म अप। वार्म अप हम नेक्स्ट से शुरू करेंगे। सो उसके लिए यू कैन जस्ट डू द नेक वार्म अप फर्स्ट, और उसके लिए अपने चिन को नीचे और ऊपर लेकर जाइए एंड रिलीज द टेंशन इन योर नेक वेरी स्लोली। 3 to 4 or even 5 rounds is fine. And then left to right. So अपने ईयर को शोल्डर के साथ टच करने की कोशिश कीजिए। ईयर टू शोल्डर्स। इसमें कंधे को ऊपर नहीं लाना है, ईयर को नीचे लेकर जाइए। And feel that your neck muscles are getting warmed up. At the same time tension release हो रहा है। Now the shoulder warm up. So backward motion में full motion दीजिए। backward motion, full motion. You can do this 7 times and then forward 1,
2, 3, 4, 5. 2 more. And relax. Let's do the wrist warm up. Wrist का हम काफ़ी इस्तेमाल करने वाले हैं, so feel your wrist warming up and do the reverse. Keep a smile on your face while doing exercise. Awesome. And then do the hip rotation, hip circle, full motion. So just be in comfort. जितना आप कर सकते हैं हल्का हल्का धीरे धीरे कीजिए. And opposite, anti-clock. आपके abs भी engage हो रहे हैं इसमें. Your core is getting engaged. And relax. Now, what you can do is you can just stretch your hamstring and then quadricep at the same time. आप चाहे तो साइड में सोफा का या तो चेयर का सपोर्ट लीजिए एंड डायनामिकली इसे स्ट्रेच कीजिए. हम पूरा दिन क्योंकि बैठे रहते हैं तो ये मसल्स काफ़ी वीक हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, क्वाड्रिसेप एंड हैमस्ट्रिंग. सो 3 बार आप कर सकते हैं बोथ द लेग्स. कीप अ सपोर्ट. अगर आउट ऑफ बैलेंस हो रहे हैं कीप अ सपोर्ट. फील द स्ट्रेच इन योर हैमस्ट्रिंग एंड नाउ इन द क्वाड्रिसेप, योर थाइस. लास्ट टाइम. एंड the last warm up, which is ankle. So simply circle में घुमाना है उसे, very easy. And then anti clock. उसे बता दीजिए कि हम ready है वर्कआउट करने के लिए. Other leg. Beautiful. धीरे 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 आपका बॉडी मानो खुल रहा हो. Opening up for the exercise. ऐसा फील कीजिए. Awesome. Let's start with our first exercise. Warm up is over and the first exercise is simple jumping jacks. So what you're going to do is 1, 2, 3. Let's do 30. All right, keep going. Let's do 30. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 more, guys. 3, 4, 5. 10 more. All right, awesome. Next exercise, which is inch warm. So what you're going to do is, आपके पास अगर मैट है उसके एज पर आ जाइए. गो डाउन, वॉक 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 वॉक. प्लैंक की पोजीशन में आ जाइए. कम बैक एंड स्टैंड. One more. Go down. Come back and stand. Keep going. Keep going. Keep going. 3. Let's do 10. 4. 6 more. ऊपर आए तब बिल्कुल सीधे हो जाइए. 5. Stand straight. Go down. 6. 4 more, guys. Come on, you can do this. Easy. 3 more. 2 more. And the last one. And come up. Next exercise, number 3 exercise, that is shuffle and touch the ground. So let's go. 1, 2, 3, touch. 1, 2, 3, touch. 1, 2, 3, touch. 10 each side. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, last one,
and relax. Amazing, guys. How is it feeling? Let's do the next exercise, which is mountain climbers. Take a deep breath. Take a deep breath. Let's do mountain climbers. Plank position में आ जाइए and go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5 more. 19, 20, and you can relax. Beautiful. Already you have done 4 exercises. Next one is slow burpees. Slow burpees, you can just do 15. If not, just do 10. All right? So, mat के आगे आ जाइए. Up, down, दोनों legs पीछे, दोनों legs आगे, and up. Come on, let's do 10 at least. This is slow, this is not fast, so you're not jumping. If you want, you can jump. So you can jump back, you can jump forward and up. 5, 6, 7, 8, 9, and last one. Awesome, wonderful. Next one, and that is reach and crunch. So one side, अपने feet को almost 45 से थोड़ा सा tilt कर सकते हैं. 45 भी चलेगा. And then you can turn to your side a little bit and reach and crunch, crunch, crunch. Try 15 each side. 5, 6, 7, 9, 10. 5 more. 2, 3, 4, 5. Other side. 1, 2, 3, 4. Come on. Reach and crunch. 5 more. Reach and crunch. Last one. Amazing, guys. Beautiful. Next one, and that is plank ही करेंगे, but then you have to come up and down in plank. So in this position, 1, 2, just do 10, 3, 4, 5 more. You can do this. Come on. Last one. And you can relax. Whew. Let me know in the comment, how are you feeling at this moment? Beautiful. Next one, and that is alternate knee and elbow touch. So come to the plank position and then put your heels down. All fours में आ जाइए. Alternate hand and leg raise and then crunch. 1, find your balance. 2, 3, 4, 5. Let's do 10. And last one. Beautiful. Other side. Come on, you can do this. Other side. 2, 3, 5. Last one. And relax. Good. Very nice. The next one, 8th exercise that we have done. The 9th one, last 2 left. That is Superman. Superman. So, उल्टे लेट जाइए आपके मैट के ऊपर. For the back, we are going to do this exercise. So what you have to do is, दोनों हाथ को आगे रखते हुए हाथ को भी ऊपर लेकर आना है और पैर को भी ऊपर लेकर आना है. Like this. 1, down. 2, and down.
Do 10. Feel your back muscles working. Hold for a second and down, then down. Come on. Last one. And relax. Okay, now comes the last one, and that is you're going to lie down on your mat like this on your elbow. Okay, और नीचे के leg को bend कर दीजिए 90 degree angle and in this. So exactly आपके एक knee के नीचे दूसरा knee होगा and 90 degree angle आपको bend करना है. Keep your hands here or here, जो भी आपको comfortable लगे, and leg raise. 2, 3, 4, 10 each side. दोनों leg पर करना है at least 10. And relax. Other side. Rest on your elbow. Bend your knees and go 1, 2, 3, 4, 5. This is very easy. 6, 7. Feel your outer thigh. You can do more of these, no problem. And relax. Let's take a break of 1. And then हाथ को पीछे लेकर जाइए. Look up. अपने बैक को बेंड कीजिए. Chest stretch. And then hug yourself, round your back. One more time. Hug yourself, other side. 2 more. Hug yourself. And hug yourself. And relax. Let's do some shoulder stretch. Hold for 10 seconds. Other side, hold for 10 seconds. Keep breathing deep. Feel the blood flow, the energy moving in your body from your head to the toes. Relax. Tricep stretch. इसे stretch कीजिए. Close your eyes. Feel the stretch. Other side. Breathe out from your mouth if you need. तो ज़्यादा relaxation का feeling होगा आपको. And then relax. Now अपने leg को butterfly pose में लेकर आइए. And just feel the stretch. Amazing stretch. Beautiful. Keep breathing deep. Keep breathing deep. Let's come to Baddha Konasana, the last pose, and that is ऐसे ही रखते हुए you can slowly go down, down. And slowly, whenever you are ready, you can come back and you can stand up. Good morning, everyone. I hope सबने enjoy किया workout session. Good morning. मॉर्निंग सभी को नमस्कार. Good morning. और अब हम आगे बात करेंगे जादुई घटना के बारे में. आप अपनी लाइफ में कहाँ जादुई घटना को फील कर रहे हैं, जादू को फील कर रहे हैं, शेयर कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं. वेलकम. कौन शेयर करने वाला है आज? मैं करना चाहूंगी. कल एक बहुत जादुई घटना हमारे साथ हुई और मैं अभी तक मतलब अभिभूत हूँ उस घटना से. कल क्या है कि हम कहीं जा रहे थे तो रास्ते में हमारा पेट्रोल खत्म हो गया गाड़ी का और गाड़ी एकदम स्टॉप हो गई.
तो गाड़ी को तो वहीं खड़े करके हम जो काम करना था वो करके आ गए। वापस गाड़ी लेके और पेट्रोल पंप तक जा रहे थे, पेट्रोल पंप थोड़ा दूर था। तो एकाएक एक टैक्सी वाला आया और बोला कि चलो आप टैक्सी में बैठो, मैं आपकी गाड़ी को पुश करके और वहां तक पहुंचाता हूँ। तो मतलब एक भगवान ने देवदूत की तरह ही उसे भेजा हमारे साथ। और बहुत बहुत दूर था पेट्रोल पंप और वहां तक उसने गाड़ी को पुश किया और बिना एक भी पैसा लिए, बिना धन्यवाद सुने वो चला गया। इतना मुझे ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने ही भेजा था उसको हमारी मदद करने के लिए। मेरे लिए उसके पास शब्द ही नहीं थे। हालांकि मैंने उसको कहा था धन्यवाद, पर धन्यवाद बहुत छोटा लगा उस समय मुझे। मुझे और कुछ कहना चाहिए था पर वो शब्द निकल नहीं पा रहे थे। मैं इतनी ज्यादा उससे थी। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू। थैंक यू सो मच। रियली ये छोटी-छोटी चीज़ें हमारे लाइफ में होती हैं और ये जस्ट बिकॉज़ हमारे पॉजिटिव वाइब्स की वजह से और जो जादू हम अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो बिल्कुल थैंक यू सो मच अरुणा दी शेयर करने के लिए। और कौन शेयर करना चाहेगा? हाँ जी, मैं शेयर करना चाहूँगी। गुड मॉर्निंग। कल जैसे प्रोटीन का जब ऑफ़र आया था ना हमारा ये जूसेस वाला, तो मतलब 20-25 दिन पहले की बात है, गूगल से कोई ऑर्डर था, तो वो लेडी मुझे बोलती है, "मुझे प्रोटीन जो है 3400 का चाहिए।" मैंने उसको 3600 बोला था कि हमारा बिल ही इतने का आता है, तो उससे कम मैं नहीं दे सकती आपको। मैम मिलता है कहीं से, तो मैंने कहा, "ठीक है मैम, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम यदि कोई ऑफ़र आएगा, तो मैं आपको भेज दूँगी।" जूसेस का ऑफर आया, मैंने उसको भेजा, तो बोल रही है मैम प्राइस क्या रहेगी विदाउट जूसेस और विद जूसेस? तो वही मैंने सेम 3600 बोला है। तो कल मैंने उसको फिर मैसेज किया कि उसका जवाब नहीं आया तो मुझे लगा कि शायद पता नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कल उसको वापस मैसेज आया है कि है ना मैम प्रोटीन तो चाहिए लेकिन विदाउट ऑफर चाहिए। तो आज अब उसको यही करूँगी, चलो इतनी लंबी बात चल रही है तो मैं उसको यही मतलब मैंने सोचा है कि उसको उसके साथ में उसको बोलूँगी आपको वैसे डिस्काउंट नहीं दूँगी लेकिन एक प्रोडक्ट आपको ज़रूर दे दूँगी। तो वही सोचा है मैंने और ये इस तरह से मतलब फ़ॉलो अप करने पे रिज़ल्ट ज़रूर आते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सुप्रिया भाभी, बहुत अच्छे से शेयर किया आपने। डेफिनिटली रिजल्ट आने एकदम तय है। और कोई भी शेयर करना चाह रहा है अपनी जादुई घटना, अपना एक्सपीरियंस? हेलो सीमा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग संतोष। एक्चुअली कल हमने गुड़गांव के पास ही एक एप्साइटी की मीटिंग की थी, तो काफ़ी अच्छा रहा है एक्सपीरियंस। और वहाँ पर गए तो हमें पता नहीं था कि गाँव के लोगों को इतना कुछ जैसे, तो हमने वहाँ पर काफ़ी कुछ बताया एप्सा के बारे में कि ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो उनके काफ़ी सारे डाउट्स थे उस चीज़ के बारे में ना, कि कैसे काम करेगा, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस के बारे में उनको डर लग रहा था कि मतलब ये क्या है, इसमें क्या, क्योंकि फसल को कोई खतरा तो नहीं है या डिसएडवांटेज तो नहीं है। बट जैसे ही उन्हें पता चला कि ये एमवे का प्रोडक्ट है, तो वो काफ़ी मतलब एकदम से कॉन्फिडेंट हो गई। तो हमें नहीं लगता था कि उनको इतना पता होगा एमवे के बारे में, बट सारे प्रोडक्ट्स के बारे में उन्हें पता था। बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो यूज़ भी करते थे पहले। तो बोले कि मैम अगर एमवे का प्रोडक्ट है तो फिर तो कोई डाउट ही नहीं है, मतलब काफ़ी अच्छा अच्छा ही होगा। तो काफ़ी अच्छा लगा वो सुनकर और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो थैंक यू सो मच। ग्रेट, ऑसम शेयरिंग संतोष। और भी कोई शेयर करना चाह रहा है? 1 या 2 शेयरिंग और ले सकते हैं हम। चलिए मैं शेयर कर देती हूँ। कल अचानक से ऐसा हुआ, एक अननोन नंबर से मेरे पास कॉल आया। मैंने फ़ोन पिक किया तो उन्होंने कहा कि आप एमवे में डील करते हो? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे 1 केजी प्रोटीन पाउडर चाहिए, कुछ चॉकलेट फ्लेवर में प्रोटीन पाउडर चाहिए, आपका कुछ ग्रीन टी वाला भी कुछ आता है। मतलब ऐसा कर करके उसने मैंने फिर बताया कि ऑफर भी आ रहा है, तो वो सब चीज़ें होने के बाद फाइनली जो उन्होंने ऑर्डर दिया, लगभग 20-21 हज़ार रुपए का ऑर्डर दिया। और विटामिन डी 2, एक्टिनिशिया 2, इस तरह से ना पूरा बहुत सारा लंबा चौड़ा ऑर्डर दिया 21 हज़ार के करीबन का। तो मुझे नहीं पता वो फ़ोन कहाँ से आया, कैसे आया और कैसे वो मुझे जानते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन ये बिल्कुल एक जादुई घटना लगी मुझे कि एकदम से हमारे जो वाइब्रेशंस हैं वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। और जैसे विवेक भैया कहते हैं, कब कौन कैसे आपके बिज़नेस में आएगा, कौन प्रोडक्ट खरीदेगा, कुछ नहीं पता।
लेकिन आप काम करते रहोगे तो होगा जरूर, ये कंफर्म बात है। तो ये सैटरडे संडे, मतलब सैटरडे भी मेरे साथ ऐसा हुआ, संडे भी ऐसा हुआ। ये सैटरडे संडे में मैंने लगभग जो है वो 45,000 के आसपास का सामान बेच लिया। डायरेक्ट कस्टमर जो है वो मेरे पास आए। तो ये बिल्कुल मुझे तो जादुई घटना लग रही है बिल्कुल ना। तो ये जादू का कमाल है, हमारे सेशन का कमाल है, हमारी पॉजिटिव वाइब्स का कमाल है, और जो हम ये सब साथ में मिलकर प्रेयर करते हैं उसका कमाल है। थैंक यू सो मच। अब हम आगे चलते हैं जिसमें हम बात करेंगे पॉडकास्ट या कथा की। मैंने कल एक पॉडकास्ट शेयर कर दिया था, लेकिन आज सुबह मैंने देखा कथा आ गई थी तो मैंने कथा भी शेयर की थी। तो कोई भी अपना टेक अवे बताना चाहे पॉडकास्ट या कथा से। अगर सबने कथा सुनी है तो कथा के बारे में आज हम बात करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि वो बिल्कुल फर्स्ट आई थी। हाँ जी, सुप्रिया भाभी वेलकम। हाँ जी, थैंक यू सो मच। और मैंने ये कथा सुनी तो कथा नाम, एक्चुअली उनका नाम हरभजन, मतलब गदा गद्दा, मतलब उनकी वाइफ का नाम है, को नाम एक्चुअली एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, आज मॉर्निंग में सुनी थी। तो उनकी हरे वाइफ, कृष्णन। हाँ हरे कृष्ण, हाँ राइट, सॉरी तो उन सर का नाम याद नहीं आया मुझे। तो उन्होंने, जैसे जो उनकी वाइफ थी वो मेडिकल थी, और मेडिकल से रिलेटेड किसी फील्ड में थी, और वो खुद जो थे मैकेनिकल इंजीनियर थे। मतलब फाइनेंशियली बहुत अच्छा स्ट्रांग था उनका, फैमिली भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ था। उन्होंने बिजनेस जो है उनको पता था कि स्टार्ट किया 98 में। देन उनका जो, मतलब मेरे को मेन फोकस, मतलब जो टेक अवे मेरा यही रहा कि वो कह रहे थे कि हमारे घर में प्रोडक्ट यूज नहीं होता था, नहीं करते थे बिल्कुल। मेरी वाइफ इंटरेस्टेड नहीं थी, वो बाद में आई थी बिल्कुल, और उनके घर में प्रोडक्ट यूज नहीं होता था बिल्कुल। वो बिजनेस कर रहे थे बट रिजल्ट नहीं आ रहा था। देन उन्होंने जब स्पॉन्सरिंग की, खुद ही शुरू से प्लान दिखाते थे। बोले मेरे जो काम की जो बागडोर है वो मैंने ली थी, मैं खुद प्लान दिखाता था, वही काम जो है वो मेरी टीम में सभी लोग करते थे। तो उन्होंने थोड़ा-सा इनएक्टिव हो गए थे, उन्होंने 98 में जॉइन किया, 2001 में थोड़ा-सा इनएक्टिव से ही हो गए थे। लेकिन अचानक से उनको पता चला, उनका एमवे से पैसा आया, कोई चेक आया। तो वो चेक जब उन्होंने पता किया तो उनकी डाउनलाइन्स के थ्रू, के बिज़नेस के थ्रू उनको चेक आया था। उनकी डाउनलाइन 18% पहुँच गई थी और उनको वो चेक आया। तब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ये बिज़नेस जो है बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देता है। देन अगेन उसको रीबिल्ड करना उन्होंने शुरू किया। तो ये मेरा टेक अवे रहा कि करते रहें, काम अपना खुद बागडोर कर लेते हुए करते हैं, डेफिनिटली सक्सेस मिलेगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच सुप्रिया भाभी। बहुत अच्छे से आपने शेयर किया कि किस तरह से जो है वो डिसीजन लिया, फिर इधर उधर हुए, और फिर जो सिक्योरिटी देखा कि अपनी लाइफ में मिसिंग है, तो पक्का डिसाइड करके और बिजनेस को किया। अमेजिंग स्टोरी है। रोहित भैया कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? दीदी मैंने वो पॉडकास्ट सुना है, हाँ जी भैया। तो हाँ, उससे शेयर कर सकते पॉडकास्ट के हैं। बारे में भी शेयर कर सकते हैं। कथा किसी और ने सुनी है? ओके। कथा आई थिंक किसी ने नहीं सुनी। हम कल कथा के बारे में फिर से एक बारी लेंगे, क्योंकि आज सुबह ही मैंने शेयर किया था कथा के बारे में, और कल हम कथा वापस से लेंगे। आप पॉडकास्ट बता सकते हो। ओके, सो जो पॉडकास्ट था वो था कि हमारी टीम से हम रिलेशनशिप कैसे बनाएं। तो उसमें से कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट करे हैं। वो है, सुमित जी ने हमें बताया है कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी किसी को किसी भी परिस्थिति में क्रिटिसाइज, कंप्लेंट और कंडेम नहीं करना है, ठीक है। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो लोग आपसे दूर होते जाते हैं, है ना, वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे और वो आपसे दूर होते जाएंगे। फिर उन्होंने बताया है कि आप अपनी टीम में लोगों को एक सिंसियर एंड ऑनेस्ट फीडबैक दीजिए। आप किसी नए व्यक्ति को खुश करने के लिए कोई फ्लैटरिंग या चापलूसी मत कीजिए, ठीक है। आप उनको सिंसियर फीडबैक दीजिए। और उन्होंने एग्जाम्पल से भी बताया है कि अगर वो कुछ अच्छा प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं किसी मीटिंग में, तो भी आप उनको एटलीस्ट फॉर द पार्टिसिपेशन उस चीज के लिए अप्रिशिएट कर सकते हैं, बट उनको झूठी वो मत दीजिए अप्रिसिएशन, उनको ऑनेस्ट फीडबैक दीजिए। इससे आपका जो फीडबैक है उसकी वो वैल्यू करेंगे, ठीक है। और आप कुछ ना कुछ कोशिश कीजिए, कुछ आप निकालें उनमें अप्रिशिएट करने के लिए, ठीक है। तो ये एक पॉइंट उन्होंने बताया। उसके अलावा उन्होंने एक और चीज बताई कि नए लोगों के साथ में टीम में अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि
लोग ये भूल जाएंगे कि आपने उनको क्या कहा, आपने उनके लिए क्या करा, बट पीपल विल नॉट फॉरगेट हाउ यू मेक देम फील। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि उनको एक अच्छा फील होना चाहिए आपके साथ बात करके, अच्छा अप्रिसिएशन आप उन्हें दें। और जब कोई हम अपनी टीम में कोई गोल देते हैं, कोई टास्क देते हैं, तो उस टास्क के लिए उस गोल को कनेक्ट कीजिए व्हाट दोज पीपल वांट इन देयर लाइफ। ठीक है, सुमित जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने लिए काम करता है, वो ऐसा नहीं है कि आपके गोल के लिए काम कर रहा है, वी आर नॉट पेइंग देम, वो हमारे कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं। इसलिए उनके अंदर एक चाहत जगाइए इस बिजनेस को करने की, और अपने बिजनेस की हर एक एक्टिविटी से उस चाहत को जोड़िए कि ऐसा करने से आपकी ये जो चाहत है ये ऐसे पूरी होगी। सो दीज आर माय टेक अवेज। ग्रेट शेयरिंग, बहुत शानदार, आपने बहुत अच्छे से बताया। और बिल्कुल मतलब मेरे को एकदम से भैया जब बता रहे थे तो मुझे एकदम से याद आ गया जो विवेक भैया का एक वीडियो आया है, उन्होंने वहां पे भी बताया है कि किस तरह से जितने एएलएस ट्रिप पे लोग थे उसमें से बहुत अच्छा परसेंटेज जो है वो U30 का है, और उन्होंने किस तरह से जो है वो बहुत जल्दी जल्दी जो है वो सोशल मीडिया को यूज करके ग्रोथ ली है। तो डेफिनेटली अब टाइम है जबकि हम U30 पे फोकस करें, U30 को कैसे संभालना है, कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करना है, और कैसे अपनी टीम के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हर एक छोटी से छोटी बात जो है वो सुमित जी ने पॉडकास्ट के जरिए जो है वो हमें सिखाई हुई है, हमें बताई हुई है, उन छोटी छोटी बातों पे जिनको हम हमारे टीम में हो रही होती है लेकिन हम नजरअंदाज कर जाते हैं। तो बहुत शानदार पॉडकास्ट है, थैंक यू सो मच। किसी और ने भी अगर पॉडकास्ट सुना है ये तो शेयर कर सकते हैं अपना टेक अवे। हेलो हाँ जी, प्रियंका जी से भी सुनते हैं, संतोष ने भी बोला। हाँ जी, पहले आप बताइए संतोष। गुड मॉर्निंग सीमा। एक्चुअली कल मैंने सुना था इसका मतलब सुमित जी का, तो काफी अच्छा लगा और लर्निंग यही रही जैसे आप बता रहे हो U35 का। तो सबसे पहले उन्होंने यही बताया है कि भाई जैसे आजकल की जो जनरेशन है मतलब U35 जो है, तो वो आपको लगता है कि मीटिंग वगैरह के बीच में जैसे वो चैट्स वगैरह या थोड़ा सा मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो अगर आप उनको कंट्रोल करना चाहोगे मतलब उस चीज के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। उनको दूसरे तरीके से आपको हैंडल करना है। जैसे आप मीटिंग में हो, उन्होंने अपना एग्जांपल बताया कि जैसे मैं मीटिंग ले रहा हूँ और मुझे लगता है मतलब कैमरा ऑन करवाते हैं वो सारी मीटिंग्स में, तो उन्होंने बताया कि जैसे मैं मीटिंग ले रहा हूँ, मुझे लगता है कि कोई भी मतलब नीचे की तरफ सिर कर रखा है, तो इसका मतलब है कि वो फोन में लगा हुआ है या डिस्ट्रैक्ट हो रहा है या बोर हो रहा है मेरी बातों से। तो मैं उन चीजों को फिर मोड़ देता हूँ किसी और चीज में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो आपको अपने तरीके से मतलब उन चीजों को हैंडल करना है। आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते या कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप मतलब उन चीजों में मतलब क्यों लगे हुए हो, क्योंकि उनका नेचर है, ठीक है। ये डिस्ट्रैक्शन में आजकल सोशल मीडिया का इतना वो है, तो वो रहेगा थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ना। आप उनको उन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको दूसरे तरीके से इन चीजों को हैंडल करना है। और सेकंड उन्होंने बताया कि जैसे हमारा जो बिजनेस है वो रिलेशनशिप का बिजनेस है टीम के साथ ना। हालांकि आप आजकल जब कुछ डिजिटल हो गया है, हम बहुत कुछ मतलब वो कर रहे हैं, मीटिंग्स वगैरह ऑनलाइन कर रहे हैं, बट फिर भी जो रिलेशनशिप है वो बिल्ड करने का वो हमें देखना है और उस तरीके से मतलब काम करना है कि टीम के साथ अच्छा रिलेशनशिप हम बना सके। तो इसके लिए हमें जैसे रोहित जी ने बताया कि मतलब फंडामेंटल बताए थे कि क्रिटिसाइज नहीं करना है और मतलब उनके ड्रीम के लिए काम करना है। तो मेरा ये टेक अवे था कि हमें मतलब टीम के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए यही 3 जो फंडामेंटल भैया ने बताया कि भी किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना है, दूसरों के लिए ड्रीम के लिए कार्य करना है और सिंसियर मतलब एप्रिसिएशन आपको उनको देनी है। तो थैंक यू सो मच सीमा। थैंक यू सो मच संतोष। प्रियंका जी से जरूर से सुनना चाहेंगे, उनका टेक अवे क्या रहा पॉडकास्ट को सुन के। वेलकम प्रियंका जी। हाँ जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। वैसे तो सबने बता ही दिया, बहुत अच्छे से सबने बताया है, बट बस यही उसमें लिखा मतलब उन्होंने बोला है सुमित जी ने पॉडकास्ट में कि हमें मतलब कभी भी शिकायतें नहीं करनी चाहिए किसी को, और एप्रिसिएशन देना चाहिए, ऑनेस्टी का, गिविंग ऑनेस्ट, और एप्रिसिएशन करना चाहिए, और चापलूसी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और ये हमें देखना चाहिए पीपल वांट व्हाट दे वांट, मतलब पर्सन को हमेशा मतलब उनको अच्छे से समझना है और ये नहीं उनको कोई प्रेशराइज नहीं करना है।
मतलब उन्होंने ऐसे ही बताया था। और जो अगर हम गाथा की बात करें तो वैसे तो सुप्रिया भाभी ने बता दी है, बट उसमें ये बोला है उन्होंने कि अगर वो उनके साथ बहुत सारी आई सिचुएशंस, बट उन्होंने वापस अगेन स्टार्ट किया और उन्होंने कहा एमवे के बिजनेस में उन्होंने सबसे ज्यादा जो गेन किया वो ये किया है कि रिलेशनशिप बिल्ड किए हैं, उनको फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिले उसमें, और मनी तो मिली ही मिली, बट ट्रेवल ये सब उनको बहुत अच्छे से मिला और वो उन्होंने आगे उसको और बढ़ाया। ग्रेट, ऑसम। सीमा, आई थिंक उन्होंने शायद 2 स्पॉटिफाई को मिक्स कर दिया है। गाथा तो दूसरी वाली थी जो अभी आपने लेटेस्ट शेयर हाँ, करी वो है उन्होंने ना? और बोला कि उसमें ये वाली चीज बताई हुई है। हाँ, अंडर 30 वाले इसमें तो उन्होंने कहा लुक एट योरसेल्फ बिकॉज यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, राइट? अगर आप अपने आप को मिरर में देखते हो, वो एक पर्सन है जिसको अच्छा भी होता है तो आप रिस्पॉन्सिबल हो, खराब भी होता है तो आप रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि शीशे में अगर आप देखोगे अपने आप को तो कौन दिखाई देगा? इट इज यू। तो हमें अपने ऊपर ही सुधार करने की जरूरत है। दिस इज माय टेक अवे फ्रॉम दैट। बाकी सुना तो बहुत था और आई थिंक सब शेयर हुआ होगा, जैसे अभी संतोष ने बताया था। और गाथा वाला तो बहुत ही अच्छा था, इनफैक्ट मैं सुन ही रही थी अभी ये वाला, तो किस तरह से उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, राइट फ्रॉम दे हैव बीन मैकेनिकल, एक मैकेनिकल इंजीनियर है और एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, सॉरी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, मतलब उनको मेडिकल टर्म्स जो पढ़ना होता है वो पढ़ते हैं, मतलब पढ़ सकते हो। तो उन्होंने यही बताया कि किस तरह से वो कौन सी जॉब में थे, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि प्रोडक्ट्स ही यूज नहीं कर रहे थे। बहुत टाइम के बाद उन्हें एसोसिएशन और प्रोडक्ट्स की जब वैल्यू पता चली तब उन्होंने अपना बिजनेस बिल्ड किया। और जब अपने ही मतलब LOS में जब उन्होंने देखा कि 5th लाइन में जाके, जहां पर डेप्थ में जाके 5th लेवल के डेप्थ में जाके देखा कि वो 18% पहुंच गया विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम देम, तब उनको लगा कि नहीं, अब मुझे भी करना चाहिए और मैं भी कर सकता हूँ। तब उन्होंने इसको बिल्ड किया। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट, ऑसम। तो हम कल फिर से जो है वो कथा की बात कर सकते हैं मेरे ख्याल से। तो मैं बिल्कुल हैंड रेस देखना चाह रही हूँ कि कल कथा कौन कौन सुन के आएगा। फटाफट जो है वो हैंड रेस कर सकते हैं कि कथा कल कौन कौन सुन के आएगा, क्योंकि अभी Yes. काफी लोगों ने नहीं सुनी है। मुझे कुछ ही हैंड रेस दिखाई दे रहा है, कुछ और भी एक्सपेक्टेशन है कि वाओ, ग्रेट ग्रेट, है ना? थैंक यू। तो ये सब लोग जो है, हम सब लोग मिलके कथा को सुनेंगे। उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हम गैदर करेंगे, क्योंकि वो हमारे बिजनेस में बहुत इम्पैक्ट जो है वो डालने वाले हैं। थैंक यू सो मच। तो आप अपने हैंड डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं बुक की तरफ। तो वापस से मैं हैंड रेज ही करवाना चाह रही हूँ कि कौन कौन बुक पढ़ के आया है। फाइल 1 कौन पढ़ के आया है? मुझे कुछ 6-7 हैंड रेज दिख रहे हैं, तो मैं प्रवीण जी से सुनना चाहूंगी फाइल 1 के बारे में। पॉडकास्ट में हमने जो शेयर किया वो डेफिनेटली इससे कुछ कुछ चीजें रिलेटिव भी हैं। प्रवीण जी। थैंक यू सो मच दीदी। हाँ जी, वेलकम। थैंक यू दीदी। दौलत की फाइल नंबर 1 की हम लोगों ने पढ़ने की बात की थी कर, तो उसमें ये बताया गया कि अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपनी जिंदगी को खुद बनाता हूँ, लेकिन गरीब लोग जो होते हैं उनको लगता है कि मेरी जिंदगी में ये सब घटनाएं होती रहती हैं। तो उन्होंने एक लॉटरी टिकट का एग्जाम्पल दिया था कि गरीब लोग जो है वो लॉटरी टिकट लेके सोचते हैं कि वो मेरा पैसा कमाने का अच्छा जरिया है। तो वो लोग कहीं से भी अपना एक लॉटरी लेते हैं और फिर रात को सैटरडे नाइट को उन्होंने बताया कि वो टीवी पे देखते रहते हैं कि भाई लॉटरी किसकी निकलेगी। लेकिन अमीर लोग जो होते हैं वो सिर्फ अपने एक मनोरंजन के लिए खाली लॉटरी टिकट कभी कभार ले लेते हैं, अदरवाइज वो उसको पैसा कमाने का जरिया बिल्कुल भी नहीं मानते हैं।
तो इस तरह से जो गरीब लोग होते हैं वो अपने सैलरी जो है मोस्टली वो लॉटरी वगैरह पे खर्च करने पे लगा देते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम लोग जो गरीब लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं खुद को एक तरह से पीड़ित लोगों की भूमि मतलब उसमें मानते हैं वो। उन्होंने बोला कि लोग पीड़ित नहीं है, लेकिन वो अपने आप को पीड़ित की भूमिका में निभाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं ना कि मतलब अपने आप वो मानते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं ना, वो एक छोटे से जरिए से हम लोग पैसा कमा सकते हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि जो पीड़ित लोग हैं उनकी हम किस तरह से पहचान कर सकते हैं। तो उन्होंने कुछ उनको आइडेंटिफाई किया कि वो 2-3 नंबर उन्होंने बताए थे कि पहला तो दोष मंडना होता है कि वो हर अपने कोई भी काम का दोष जो है दूसरे के ऊपर मंड देते हैं। चाहे वो उन्होंने बोला कि वो अपने जैसे ब्रोकर्स को दोष देते हैं, या अपने बिजनेस के किसी भी प्रकार के कंपनी के जो लोग होते हैं उनको दोष देते हैं, कर्मचारियों को दोष देते हैं। तो इन्होंने बताया कि हर जगह पे वो मतलब कोई भी काम अगर होता है तो वो दूसरों को दोष देते हैं। और दूसरे नंबर पे उन्होंने बताया था कि अगर हमें पीड़ित का कोई भी आइडेंटिफाई करना है तो खुद को सही ठहराना। मतलब अगर वो पीड़ित कई बार होता है कि दूसरों को दोष तो नहीं मान रहे होते, लेकिन अपने आप को वहां पे सही मान रहे होते हैं वो, कि उनको लगता है कि भाई पैसा ही जो है ना वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो उन्होंने बताया कि हम लोग कुछ जैसे सेमिनार वगैरह में जाते हैं तो वहां पे ऐसा होता है कि लोगों से आंखों में आंखें डाल के पूछते हैं कि आप करके हैं, ठीक है ना? तो एकदम से उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, तो उनको लगता है कि इनको कैसे पता चला। तो उन्होंने इस तरह से बताया कि हम लोग को मतलब इन चीजों का एहसास हो जाता है और पता चल जाता है। तो उन्होंने बताया कि एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर हम लोगों को मोटरसाइकिल की अगर इम्पोर्टेंस नहीं है, हम लोगों को इम्पोर्टेंट नहीं है मोटरसाइकिल, तो हमारे पास मोटरसाइकिल होगी भी नहीं। ऐसे ही उन्होंने एक तोते का उदाहरण दिया था कि अगर पालतू तोता हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो हमारे घर में मिलेगा भी नहीं वो। तो इस तरह से उन्होंने बोला कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा कर सकते हो। और उन्होंने बताया कि जो गरीब लोग होते हैं ना, जो पीड़ित लोग, वो पैसा को प्रेम जितना महत्वपूर्ण नहीं मानते। तो उनकी जो ये तुलना करना होता है वो बिल्कुल भी सही नहीं होता, क्योंकि अगर मान लीजिए पैसे से ही सिर्फ अगर प्रेम से काम चल जाता है तो जो कोई भी हमारे ये हॉस्पिटल है, चर्च है, मकान है, तो इनकी जो भी हम बनाते हैं तो सिर्फ प्रेम से हम उन चीजों को नहीं बना सकते, और प्रेम से हम अपना जो है किसी को भरपेट खाना नहीं खिला सकते और ना खुद खा सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि किस हम लोगों को प्रेम और पैसे में जो है डिफरेंस जो है पता होना चाहिए। थर्ड नंबर पे उन्होंने बताया था कि शिकायत करना। तो मोस्टली लोग जो है वो, ये दीदी थोड़ा सा कम पढ़ पाई थी इस। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रवीण जी, बहुत अच्छे से शेयर किया आपने। और बिल्कुल हमें किसी को दोष नहीं मढ़ना है ना, कंप्लेन नहीं करना, पूरी सारी चीजें बताई आपने। थैंक यू सो मच। मैं रामा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो थोड़ा सा बताएं। उन्होंने भी बुक पढ़ने के लिए हैंड रेज किया था। रामा जी ने बुक पढ़ी है? आई थिंक वो अभी अवेलेबल नहीं है। हाँ जी, वेलकम सर। हाँ जी मैम, मैंने ये ब्रॉडकास्ट सुना था, उसमें जैसे जी। सभी ने बताया कि अपने को अपन जैसे सफलता के लिए अपन अपने को बोलते हैं कि भाई हमने सब किया है जो हम सफल हुए हैं, वैसे ही अगर अपना कुछ गलत होता है या अपन नहीं बुक की बात कर रहे हैं, मैं बुक की बात कर रहे हैं। नहीं बुक आपने पढ़ी है? मैम, बुक नहीं। अच्छा ठीक है, कल फिर आपसे पॉडकास्ट के बारे में हम सुनेंगे। अभी हम बुक के बारे में बात कर रहे हैं। तो बुक आई थिंक अरुणा ओके। दी, सुनिए, अरुणा दी शेयर करना चाहेंगे लास्ट का शिकायत वाला? अरुणा दीदी शेयर करना चाहेंगे, या फिर मैं नीता दी को इनवाइट करना चाहूंगी अगर अरुणा दीदी अवेलेबल नहीं है तो। नीता दी आप शेयर करना चाह रहे हो? Yes, I can share. Good morning, leaders.
और मैं देख रही हूँ कि पार्टिसिपेशन तो बिल्कुल लगभग 0 सा लग रहा है। और कल देखो हमारे मेंटोर्स आने वाले हैं, मैं फिर से आपको आगाह कर रही हूँ, है ना? और वीडियोस बिल्कुल बंद रहते हैं आप जब शेयर करते हैं तो दिस इज़ नॉट अलाउड अगेन, है ना? तो कल से जब हम दौलत की फाइलें दूसरी पढ़ रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि हमें जो है कोशिश करके अपने वीडियोस ऑन रखने चाहिए, है ना? और इतना अमेजिंगली जो है सीमा इस प्रोग्राम को एवरी सिंगल डे स्टार्ट करती है अर्ली मॉर्निंग। तो दिस इज समथिंग जिसके लिए हम सीमा के लिए बहुत बहुत अप्लॉज कर सकते हैं, है ना? और मुझे नहीं लगता और कोई भी लीडर इतनी जल्दी उठ जाते होंगे, इतनी जल्दी पॉडकास्ट शेयर कर देते होंगे सारी चीज़ें। तो वी शुड एक्चुअली अप्लॉज सीमा फॉर दिस। और जो दौलत की फाइल नंबर 1 थी वो बहुत अमेजिंग थी। उसमें मैं सिर्फ 4 या 5 लाइनें शेयर करना चाह रही हूँ। जैसे कि परवीन जी ने भी बताया उसके अंदर कि आप जब अमीर होने का, जो उन्होंने बताया था पहले कि ब्लूप्रिंट क्या है, अब उस ब्लूप्रिंट को आप चेंज कैसे कर सकते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया कि जो इंसान गरीब है उसके पास वो 3 चीज़ें करता है, जैसे दोष मढ़ना और शिकायत करना और खुद को सही ठहराना, है ना? तो दोष किस पे मढ़ेंगे आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ों पे कि ये ऐसा इकोनॉमी इतनी खराब है इसलिए मैं गरीब हूँ, है ना? इसलिए ऐसा हो गया, इसलिए ऐसा हो गया, ये सारी चीज़ें जो है गरीब लोग करते हैं। और दूसरी बात उन्होंने बताई थी कि खुद को सही ठहराना, यानी कि वो बताया नहीं मनी इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ना पैसा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो उन्होंने ये बताया कि अगर प्रेम और पैसे में कई बारी आप जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और आपको लगता है कि प्रेम जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो बहुत सारे काम जो है पैसे से होते हैं, वो प्रेम से नहीं हो सकते, है ना? और दोनों की अपनी अलग-अलग वैल्यू है। थर्ड बात उन्होंने जो बताई थी, शिकायत करना। तो कई लोग जो है बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग मोड में होते हैं कि देखिए मेरे साथ ये सब गड़बड़ हो रहा है। तो हमने अभी जैसे जादू में भी पढ़ा है, जो हम सोचते हैं वही होता है, जिस पे हम फ़ोकस करते हैं, तो योर फ़ोकस क्रिएट्स एनर्जी, पॉडकास्ट में भी सुना है। तो इतना ज़्यादा सारी चीज़ें रिलेट हो रही थी। और जैसा रिलेशनशिप वाला भी पॉडकास्ट ट्रिपल सी शेयर किया रोहित भैया ने भी, है ना? क्रिटिसाइज़, कंप्लेन एंड कंडेम। ये तीनों चीज़ें जो है आपको नहीं करनी चाहिए। तो इस वाले इसमें भी हमने जो है तीनों चीज़ें पढ़ी। और मतलब आप जब शिकायत करते हैं मेरे साथ सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, है ना? तो आप शिकायत करके जो है अपनी तरफ प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करने के चुंबक बन रहे हैं, इसमें इस राइटर ने बताया है। और उसके बाद जो लास्टली जो मुझे 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि अमीर पीड़ित जैसी कोई चीज़ नहीं होती है ना? तो मुझे लगा वाक़ई में दिस इज़ सो करेक्ट, है ना? कोई या तो अमीर होगा या पीड़ित होगा। तो हमें देखना है कि हम कौन-सी कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं, है ना? और इवन मैं तो बोलती हूँ सेशंस में भी हम जब बात करते हैं, तो वी शुड नॉट क्रिटिसाइज़, कंप्लेन एंड कंडेम, है ना? वी शुड स्टॉप डूइंग इट, है ना? और जो लास्टली जो बात उन्होंने शेयर की कि आप 7 डेज़ का चैलेंज लें कि यू विल नॉट क्रिटिसाइज़, यू विल नॉट कंप्लेन, है ना? एंड यू विल नॉट कंडेम एनीवन 7 दिन के लिए। और आप देखिए कि आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, आप फिर वही अट्रैक्ट करेंगे। और वैसे भी जब आप कंप्लेंट्स करते हैं, तो कंप्लेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो 7 डेज़ का चैलेंज उन्होंने कहा है। और वो बता रहे थे कि आप बहुत अगर कंप्लेनिंग एटीट्यूड है आपका, तो सिर्फ आप ये ही बंद कर देंगे ना, तो आप देखिए 7 दिन में आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। तो आर वी रेडी फॉर दिस चैलेंज अगेन? क्योंकि हमने पहले भी ये चैलेंज लिया था, है ना? तो कितने लोग रेडी हैं इस 7 डे नो नो कंप्लेन चैलेंज के लिए? यस। यस, है ना? 2-3 लोग, 4 लोग, ओके। चलिए, तो जितने भी लोगों की ज़िंदगी चेंज हो सकती है, इट इज़ गुड। थैंक यू सीमा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नीता दी, दीदी बहुत मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा लास्ट में कि हाँ जी। इस चैप्टर के लास्ट में उन्होंने ये चीज लिखी है कि आज से आप ये स्वीकार कर लें कि आपके जीवन में मौजूद हर चीज जो आपके पास है, जो आपके पास नहीं है, और इनके बीच, और आपके पास जितनी दौलत है या कोई आपके पास कंगाली है, या इनके बीच के हर स्तर, हर चीज का निर्माण आप करते हैं, अपने स्तर पे करते हैं। तो अपने दिल को छूकर कहें कि अपनी वित्तीय सफलता के स्तर का निर्माण मैं खुद करता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है हमें रियलाइज करना। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आज हम जो हैं वो हम खुद ही निर्माण करता है कि किस तरह से हम जो सोच रहे हैं उसी से सारी चीज़ों का निर्माण हो रहा है। तो डेफ़िनेटली आगे हम इस बुक में आई थिंक फाइल नंबर 2 और 3 कल के लिए रख सकते हैं, क्योंकि फाइल नंबर 2 काफ़ी छोटी है। हाँ तो दीदी, 2 और 3 तो इजीली हो जाएगा। पेज नंबर 85 तक जो है वो 2 और 3 फाइल जो है वो हम सब पढ़ के आएँगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अब टाइम हो चला है, हम 1 ही मिनट में हमारे पास 2 ही मिनट बचे हैं, तो जल्दी से एक कोई भी जो है वो अपना फ़ोकस शेयर करे। आज के दिन में क्या ख़ास है
वो शेयर कर सकते हैं। कुछ मीटिंग्स अगर खास हैं तो बता सकते हैं, फिर हम प्रेयर की तरफ आगे बढ़ेंगे। फोकस किसी का भी कुछ है तो हम शेयर कर सकते हैं। 13 दिसंबर को एक मीटिंग है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, एक 2 बजे है और एक 4 बजे है, तो मैं उसका मैसेज सर्कुलेट कर दूंगी। और बाकी किसी के पास कुछ भी है नहीं अभी फोकस शेयर करने के लिए, तो बिल्कुल मीटिंग के बाद जो है वो आपको पेपर पेन लेना है, अपना प्लानिंग डायरी लेनी है, उसमें अपना डे प्लान करना है, जिससे कि हम उसको बहुत अच्छे तरीके से उस डे को प्लान करके और एग्जीक्यूट कर पाए। अब प्रेयर के लिए कौन करवाना चाहेगा, ये अपॉर्चुनिटी कौन लेना चाहेगा? मैं करवाऊंगी दीदी। हाँ जी, वेलकम प्रवीण जी। सभी अपने हाथों को जोड़ेंगे और अपने परम पिता परमात्मा जिनको भी मानते हैं उनको याद करेंगे और उनके साथ ही हम प्रेयर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू गॉड, आई एम अ पावरफुल पीसफुल डिवाइन सोल। थैंक यू गॉड, मैं जो जैसा है उसे उसके संस्कारों के साथ उसी रूप में स्वीकार करती हूँ। थैंक यू गॉड, मुझे जो भी मिलेगा उसे मेरे द्वारा प्रेम, सहयोग व शक्ति मिलेगी। थैंक यू गॉड, मैं परम पिता परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड, परम पिता परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ है। थैंक यू गॉड, मेरे माता पिता, मेरे जीवन साथी और मेरे बच्चे सर्वश्रेष्ठ हैं। थैंक यू गॉड, मेरे महान मस्तिष्क में महान शक्तियों के द्वारा मुझे हर सवालों का जवाब मिल जाता है। थैंक यू गॉड, मुझे एमवे बिजनेस मेरे जीवन में लाने के लिए। थैंक यू गॉड, मेरा परिवार सुखी व समृद्ध परिवार है। थैंक यू गॉड, मेरे 138 करोड़ की आबादी में मुझे मेरे 6 शानदार जानदार ईमानदार हीरे मिल चुके हैं। थैंक यू गॉड, मेरे अप्लायंस मेंटोर्स और मैं खुद बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम के सभी लोग रोज जीटीएम करते हैं, एसटीपी दिखाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं और सीडी सुनते हैं। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम के सभी सदस्य हमेशा अपने ग्रोइंग अपलाइन के टच में रहते हैं। थैंक यू गॉड, मेरी टीम सबसे ज्यादा यूनाइटेड, पावरफुल, एक्साइटेड और एमवे का इतिहास लिखने वाली टीम है। थैंक यू गॉड, मेरे जीवन में एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी लाने के लिए, ताकि मैं अपने भी और हर अपनी टीम के सदस्यों के जीवन में रंग भर पाने में एक माध्यम बन पा रही हूँ। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम के सभी सदस्य 100% प्रोडक्ट यूजर हैं और इस तरीके से अपने हर महीने 500 प्लस पीवी की डिटेलिंग कर पा रहे हैं। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम के सभी सदस्य हर जरूरी मीटिंग्स का पार्ट बनते हैं, हर जरूरी मीटिंग में भाग लेते हैं। थैंक यू गॉड, एमवे बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों तक लेके जाने के लिए। थैंक यू गॉड, इतनी सारी सुख समृद्धि देने के लिए। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम के 100 से ज्यादा कपल्स एआरएस क्वालिफाई कर रहे हैं। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। लव यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड। थैंक यू एवरीवन। अब अपने हाथों को रब करेंगे और अपने मुंह के ऊपर पूरा घुमाएंगे। थैंक यू सो मच प्रवीण जी, बहुत शानदार प्रेयर करवाई आपने, बहुत अच्छा लगा। और अब टाइम हो चला है, सब लोग अपना वीडियो ऑन करें, फोटो क्लिक करेंगे। स्टिल वेटिंग, कुछ और वीडियो ऑन हो रहे हैं, धीरे धीरे हम नींद से जाग रहे हैं। रेडी? थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। गो डायमंड टू ऑल, बाय बाय एवरीवन। कल के एसटीपी के गो लिए डायमंड। हम डीटीएम कर सकते हैं, कल जो 9 बजे यूथ एसटीपी हो के लिए। गो डायमंड टू ऑल, थैंक यू एवरीवन।